तो अगर आपने कल का असाइनमेंट किया और आपने कुछ महसूस किया तो यू कैन डेफिनेटली टेल अस, या आपको कोई भी इशू है कोई भी चीज़ को लेके यस्टरडेज असाइनमेंट उसके पहले, देन प्लीज फील फ्री टू टेल अस। एंड अगर एक्चुअली आपके साथ कुछ मैजिक हुआ है तो प्लीज उसको शेयर करिए, इट इनकरेजेस अदर पीपल टू। So how did you feel when you were grateful for the unpaid bills? इससे पहले हम लोग कभी actually bill के लिए तो thank you बोलते ही नहीं थे. That we have so much money to pay for so many things in this world. I mean, unbelievable. So what was your feeling? Good morning. Good morning, Pawanji. Yeah, I did both yesterday. Thanks to the unpaid bills and to the paid bills. I did do a lot of bills yesterday and I felt nice. Thank you. Thank you for your sharing. Thank you, Thank Pawan you so uncle, for your sharing. Thank you so much. It's 7:41, so we can now begin the running. So everyone, please stand up. Everyone, please stand up for the peak state programming. And all of us need to declare ourselves as the winner. So please don't forget to declare yourself as the winner. Because each time we are telling our subconscious mind every day in the morning, we are the winners. All of us here are the winner, the creator of our life. So let's begin. So if all of you could get up and be in the running position, I'll just start with the music. Start! Faster, 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 faster. Yashasvi, the music, we can't hear the music. I'm the winner. Can you hear the music? No, we couldn't in the middle. Let's do it again, I suppose. Okay, we'll do it again. 1 minute. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Wow. Now the left foot in front. Yashasvi, Yeah, I'll start. again the music is lagging. Beach mein it's not coming. All of a sudden. 1 minute. Yashasvi, we can hear it. Yeah, right now we can hear it, but in the middle it stops suddenly. एक बार तुम देख लो. Faster, 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 faster.
I'm the winner. The winner. I'm Yes, the winner. yes, yes. Thank you. Thank you so much, everyone. I'm really sorry for the inconvenience in between. So let's begin this beautiful day with a prayer. This beautiful morning, as we pray to our divine intelligence, to make this an impactful session where our energies may lift each other up. And as the day unfolds, transforms into a magical day for us and those around us. Thank you. Thank you. Thank you. So now I would request Sakshi to begin with the chapter. So, good morning, everyone. A very good morning. So, firstly, I would like someone to nominate his or herself to read in Hindi. Anyone? कोई भी हिंदी में पढ़ना चाहेगा आज? If anyone could nominate. बहुत इजी हिंदी है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा पढ़ने में. कोई तो नॉमिनेट कर लीजिए. Okay, I'll read. Okay, thank you. Thank you. Am I audible? Yes. So, 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें. कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना. तो एक मिनट रुकिएगा ना सारिका जी. तो आज का हमारा दिन है 10वां दिन. हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें. हम लोग ने डे 8 पे क्या सीखा था कि हम अपने खाना पे कैसे ही तत्व मैजिक इंग्रेडिएंट दे सकते हैं तो वो खाना और डिलिशियस बन सकता है और हम लोग का थॉट्स और बेटर हो सकता है बिकॉज फूड आर आवर थॉट्स. हम लोग कल सीखेंगे किस प्रकार हम जब किसी को पैसा दे रहे हैं और अपने वर्तमान के पैसे के लिए हम जिस प्रकार धन्य होंगे, तो अगर हम जितना कृतज्ञता देंगे तो हम लोग के पास पैसा उसी प्रकार वापस आएगा. सिमिलरली आज का चैप्टर है कि आप किस प्रकार हम लोग के आसपास जो लोग हैं जो पूरे दिन हम लोग के लिए काम करते हैं, हम लोग की सेवा करते हैं, उनको कैसे धन्यवाद दे सकते हैं, उन पे कैसे जादुई धूल छिड़क सकते हैं. कोई भी कर्तव्य इतनी अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना. प्लीज इस बात को समझिए. जीवन में सचमुच कोई भी कार्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना धन्यवाद लौटाना होता है. मतलब इस बुक में ना बहुत सारे मंत्र है बट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मंत्र. जब भी जीवन में कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें ना मतलब बहुत एकदम टेंशन होने लग गया है, दिल की धड़कन बढ़ने लग गई है, मन ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ना सीधा ये लाइन याद आता है, नहीं साक्षी तुमको इस समय धन्यवाद बोलना है, इस सिचुएशन में अच्छाई ढूंढना है, तभी वो सिचुएशन बेटर होता है. इसीलिए जीवन में कोई भी ड्यूटी इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन गिविंग थैंक्स. प्लीज इस मूल मंत्रों को ना एकदम रट लीजिए. प्लीज कंटिन्यू. संत अम्ब्रोस, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष. प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है. इसलिए कृतज्ञ हो. किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है. एक मिनट रुकिएगा. कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं वह उसी की ओर मुड़ जाती है.
आप कृतज्ञता की ऊर्जा को Can you all hear चमचमा me? Shall I stop? Yeah, Yes, yeah. I can hear you. Oh, yeah. थैंक यू। तो अभी लेखिका क्या बोल रही है, आपके जीवन में कृतज्ञता देना अत्यावश्यक नहीं है बल्कि अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब इट इज नेसेसरी, जरूरत है, आपको देना ही होगा। आप एक चीज सोचिए, आप अगर एक वाइफ है, आप बहुत मेहनत करके 2 घंटा तक एक डिश बनाए हैं अपने हस्बैंड के लिए, और वो ऑफिस से आते हैं, वो डिश को खाते हैं, बट वो आपको ना थैंक यू बोलते, कुछ बोलते अपने फोन में कुछ देखते हुए या क्लाइंट से बात करते हुए खा के चले जाते हैं। आपको कैसा लगेगा, आप बताइए। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में लोग आपको धन्यवाद दें, आपको खुश करे, अप्रिशिएट करे, तो पहला कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा ना। क्या बोलते हैं हम लोग, जैसा चाहिए वैसा ही दो, वॉट यू गिव यू गेट। अगर आप धन्यवाद देंगे वैसे ही आपको भी मिलेगा, तो पहला कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा ना। प्लीज कंटिन्यू। कृतज्ञता एक कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी की ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और हम उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वालों लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी है, ड्राई क्लीनर्स है या आपके ऑफिस के कर्मचारी है। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा ना। तो लेखिका क्या बोल रही है, अगर आप कृतज्ञ नहीं हो रहे ना, आप अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हो, तो यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ कि आप क्या चाहते हैं, आप जीवन में अच्छाई चाहते हैं कि बुराई चाहते हैं। प्लीज रिमेम्बर, इट इज लाइक एन एनर्जी। आप जब ये साइकिल स्टार्ट करते हैं, आप जब किसी को धन्यवाद बोलते हैं, ऑटोमेटिकली वो दूसरा इंसान धीरे धीरे करके आपको धन्यवाद बोलेगा, चाहे वो इंसान नहीं हो मगर कोई और आपके पास वो लौट के वापस आएगा या आपको खुशी देगा ही। तो आपको ही पहले स्टार्ट करना है इस चीज। प्लीज कंटिन्यू। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो, 1 मिनट रुकिएगा ना। तो आप एक चीज सोचिए, आप पार्क में जा रहे हैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने, जिस दिन रात को बहुत तूफान आते हैं या कोई स्टॉर्म है जिस कारण लीव्स, पेड़ से पत्ते गिर गए हैं, तो आप जब पार्क में जाते हैं आपको अच्छा लगता है, चारों ओर पत्ते पत्ते। किसी को ऐसे गंदगी के में रहना पसंद नहीं, सबको सफाई चाहिए अपनी ओर, क्योंकि मन भी साफ लगता है, शांत लगता है। तो आप सोचिए, रोज सुबह आपके वहां 5 बजे पहुंचने से पहले वो पूरा गार्डन साफ है, किस कारण? ये सफाई कर्मियों के कारण।
तो अगर वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने का पूरा लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपको नहीं लगता कि हम लोग सबका, मेरा और आपका ये ड्यूटी है कि आप उनको थैंक यू बोले, आप उनको धन्यवाद बोले जब भी आप उनसे मिले। और अगर बाय चांस नहीं भी मिल पाए ना, मन में तो उनके लिए अच्छा ही बोलते रहिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे कैसे चमत्कार हो रहा है। यू हैव टू ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। आपको खुद कोशिश करके देखनी है। प्लीज कंटिन्यू। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो। हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहे। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरे और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा ना। तो बचपन में ना हम लोग जब बच्चे थे, बहुत सब बच्चों से पूछो, अगर कोई बर्ड को देखते, वाह मेरे को भी आसमान में फ्लाई करना है, हम लोग सब ये बोलते नहीं है। आई एम श्योर एक ना एक बार तो हम लोग बोले ही है। आप सोचिए, चाहे आप पंछी नहीं हो, बट आप इस एरोप्लेन के कारण, पायलट के कारण, एयर होस्टेस के कारण आप एक जगह से वर्ल्ड में दूसरी जगह जा पा रहे, सिर्फ इन लोगों के कारण, संतुष्टि से प्लेन में बैठ के विदाउट टेंशन। क्यों? क्योंकि इन लोग हम लोग के लिए जी जान लगाते हैं, हम लोग की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। हर समय हम लोग जब भी फ्लाइट से निकलते हैं, आप नोटिस करेंगे उन लोग हम लोग को थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विथ अस, हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। अगर उन लोग बोल सकते हैं हम लोग को धन्यवाद, हम लोग की सेवा करने के बाद, तो हम लोग उनको क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हम लोग की सेवा उन लोग की है ना। वी शुड बी थैंकफुल कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे सिर्फ इन लोग के कारण। सो आज से हम लोग सब जब भी किसी भी वर्कर को मिलेंगे, हम लोग मन से उनको थैंक यू बोलेंगे। प्लीज कंटिन्यू। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार है। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल है। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखे कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। एक मिनट रुकिएगा ना। तो ये सारे लोग आपके दयालुता तथा धैर्य के हकदार हैं, नो डाउट। आप एक चीज सोचिए, मतलब हम ये ना, मैं एक बार नोटिस की थी, आई वाज इन समवन्स बिल्डिंग। हर बिल्डिंग में इन गेट और आउट गेट जनरली होता है। अब किसी को हड़बड़ी है, वो बिल्डिंग में रहते हैं, तो उनको अब क्योंकि इन गेट में इतना प्रॉब्लम है, उनको आउट गेट से ही बिल्डिंग में घुसना है। आप देखे होंगे, आप नोटिस किए होंगे। आप एक चीज सोचिए, वो सिक्योरिटी गार्ड वो आपको मना कर रहे हैं कि आप मत घुसिए अभी इन गेट से, आउट गेट से इन गेट में, बिल्डिंग के अंदर।
मगर हम लोग क्या करते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या, मेरे बहुत काम है, मुझे हड़बड़ी है, ये है वो है। आप एक चीज सोचिए, एज अ स्टूडेंट इफ यू आर अ प्रीफेक्ट इन स्कूल, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन करना। बट कोई आके आपको बोल रहे बीच से, अरे छोड़ो ना, फोन यूज करने दो ना क्लास में, आपको कैसा लगेगा जब कोई आपके काम में रुकावट ला रहा है, कोई आपको टोक रहा है, आपको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप एक बात सोचिए, सिमिलरली आपको कोई जिम्मेदारी दिया गया, आप किसी के शादी में गए, आपके करीबी जन का शादी है, वो जिम्मेदारी दी है कि इस शादी के इस फंक्शन को, इस पार्ट को आपको संभालना है। तो कोई आके, कोई उनका घर वाला आके आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं साक्षी, तुम ऐसे मत करो, वैसे करो ना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मेरी बेटी का शादी मुझे पता है। बट जिसका शादी, उसने आपको तो बोले ना आपको वैसे ही करना है। अब कोई आके आपके कार्य में इंटरफेयर कर रहा है, आपको बोल रहे हैं भला बुरा, तो कैसा लगेगा आपको? आई एम श्योर हम लोग में से किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सिमिलरली वो गार्ड का ड्यूटी है, आप उसको भला बुरा नहीं बोल सकते, उसके तर्क उत्तर बेफिजूल का नहीं कर सकते, क्योंकि वो सही है। आप सोचिए ना, पूरे दिन वो गार्ड हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या पता कि उसके घर में सब लोग कैसे है, उसकी वाइफ, उसकी माता, उसके पिता, बच्चे, उसका मूड कैसा है उस समय। उसके बावजूद हम लोग मतलब सोचते भी नहीं है 2 मिनट बोलने से पहले कि कोई भी सेवा कर्मियों को कुछ भी, मतलब भला बुरा कुछ भी नहीं हम लोग सोचते हैं बोलने से पहले। बट सिंस दिस चैप्टर हम लोग आज पढ़ रहे हैं, आज से हम लोग धीरे धीरे सोचने लगेंगे। प्लीज कंटिन्यू। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार समझते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ ले कि the page has to be changed. प्लीज चेंज द पेज। हाँ, आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन के किसी मोड़ पर हो या मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो आप एक चीज सोचिए, हम लोग बोलते हैं ना, नो वन कैन डिफाइन माई हैप्पीनेस, कोई मेरी खुशी को डिफाइन नहीं कर सकता है, हम सिर्फ अपने आप को खुश कर सकते हैं। वैसे ही कोई इंसान आपको कुछ बोल दे, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आप बहुत खुश मन से आए हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बट वेटर किसी कारणवश वो पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो आपसे ना थोड़ा बड़ा बुला कह के रूडली आपसे वेटर बात कर लिया, तो हम लोग क्या होते, 1 मिनट में हम लोग सब थोड़ी गुस्सा हो जाते हैं कि वो वेटर मुझसे कैसे बात कर सकता है, मैं उसको पैसा दे रही हूँ, मैं उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आई हूँ। पर आप एक चीज सोचिए, वो भी तो पूरे दिन से काम कर रहे हैं ना, कुछ हुआ होगा जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। तो आप अपना मूड मत खराब करिए, कोई आपको कुछ और बोल दिया, आप कृतज्ञता ही करिए। बिकॉज हम लोग जब मूड खराब कर लेते हैं, हम लोग जब सोचने लगते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, हमेशा याद रखिएगा, आप वहाँ डिनर टेबल पे खाना खा रहे हैं, आप बुरा सोचेंगे, आप बैड फीलिंग जोन में जा रहे हैं। फूड आर योर थॉट्स, हर चीज यहाँ पे इंटर रिलेटेड है। आप बुरा सोच रहे हैं, आपका मन खराब हो रहा है, खाना खा रहे, खाना भी गलत जा रहा है, थॉट्स भी गंदे आ रहे हैं। तो आपको अपने लिए सोचना है, आपका मूड कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, आप ही रूलर है अपने किंगडम के। प्लीज कंटिन्यू। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, दार्शनिक। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछाले। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं,
तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेलफोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। तो लेखिका सामने आके बोल रही है, जब आप मन से उनको कृतज्ञता नहीं दे रहे, सामने देख के उनको थैंक यू नहीं बोल रहे, आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ ही हुआ। जस्ट अ मंथ बैक किसी कारणवश रीजर से मेरा हाथ कट गया, तो मुझे बस लगा कुछ नहीं है, ठीक है। बट अब मम्मा ने कहा यू हैव टू गेट टेटनस। टेटनस 24 आवर्स में लगाना पड़ता है। कल करता मुझे सुबह मम्मा को मैं बोली, मम्मा बोली कि कैसे होगा। अब मैं फोन की एक कंपाउंडर को, बोली कि आप अगर आ सकते हो। वो साइंस सिटी में रहते, साइंस सिटी में ऑन अ संडे, आई रिमेम्बर वेरी वेल। मैं उनको बोली प्लीज भैया अगर आप आ सकते हैं आ जाइए। वो अकेले ऑन अ संडे ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग टाइम्स, वो बोले ठीक है मैं देखता हूँ। मैं बोलती गई, वो भैया आ रहे, वाह वाह, वो आके मेरा इंजेक्शन लगा दिए। आप एक बात बिलीव नहीं करेंगे, वो एक्चुअल में आने के लिए रेडी हो गए। बट फिर जब वो आए, मतलब आप, मैं जब उनको थैंक यू बोली ना, क्योंकि वो साइंस सिटी से ऑल द वे मेरे को इंजेक्शन लगाने आ रहे ऑन अ संडे, जब कोई अभी उनको कोई बुलाया नहीं है। आप एक सोचिए, उनका भाड़ा सब कुछ, बट फिर भी वो आए, क्योंकि उन्हें क्या लगा कि उनका ड्यूटी है। तो आप एक सोचिए, अगर वो ऑल द वे वहां से आए, तो मेरा तो ड्यूटी है ना कि मैं उनको थैंक यू बोलूं। मैं उनको सामने बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोली, और उनका जो स्माइल था, आई कांट इवन टेल यू हाउ गुड आई फेल्ट व्हेन आई सॉ हिम स्माइल। मतलब क्योंकि उनको भी एहसास हुआ कि आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल कि वो मेरे लिए आए यहाँ पे। दिस इज हाउ यू विल फील व्हेन यू विल डू दिस फ्रॉम टुडे। प्लीज कंटिन्यू। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, प्लीज कंटिन्यू। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितना कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। एक मिनट रुकिएगा ना, एक मिनट। तो ना हर क्रिया का हमेशा एक प्रतिक्रिया होता है, मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आप करते ऑपोजिट फॉर्म में आपको वो वापस मिलेगा। बार बार लेखिका ये दोहराने का कोशिश करी है। पता है मेरे साथ ही एक बार हुआ था कि आई एंड मम्मा वी वर इन अ मॉल, एंड मम्मा ऐसे किसी को थैंक यू बोल दी होगी। हम लोग जब निकलते हैं ना पैकेट लेके, वो बिल चेक करते हैं जब, तो ठीक है वो लोग बोलते हैं थैंक यू मैम फॉर शॉपिंग जो भी। तो मम्मा बोली तुम भी उनको थैंक यू बोलो। तो मैंने बोला मम्मा आप तो बोल दियो, क्या तो फर्क पड़ता है, एक जन तो बोल दिया हम लोग दोनों में से। बट मम्मी ने मेरे को उस दिन समझाया कि तुम्हारा अलग ड्यूटी है। तुम्हारे एक छोटे से कदम उनके मुंह पे क्या स्माइल ला सकते हैं तुमको आइडिया भी नहीं है। सिमिलरली दलाई लामा जो है, उन्होंने एक बहुत सुंदर कोट बोला है जो मैं अभी आपको पढ़ूंगी। आई लव लव दिस कोट।
If you think you're too small to make a difference, try sleeping with a mosquito. Petty, negative thoughts are like mosquitoes. Even the smallest can rip us of our peace. मतलब अगर हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं किसी के जीवन में कोई डिफरेंस लाने के लिए, तो हमें ना एक मच्छर के साथ सोने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि छोटे विचार, नकारात्मक सोच बिल्कुल मच्छर की तरह है। एक छोटा-सा मच्छर भी हमें कितना इरिटेट करता है जब वो खाता है, कितना हमें खुजली आती है, आप सोचिए। वैसे ही आपका जीवन में एक छोटा-सा कदम आप नहीं जानते हैं किसी के लाइफ में क्या मुस्कान ला सकती है। आप प्लीज़ ये बात को समझिए, आप नहीं जानते कि उस इंसान को अंदर से क्या फ़ील होगा। प्लीज़ कंटिन्यू। अ, मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूं जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूं जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। तो आप धन्यवाद। हाँ, सॉरी। तो आप एक चीज़ सोचिए कि मतलब लेखिका खुद बोली कि वो खुद नहीं सोच पाई थी कि किस प्रकार इन लोग सब दिन-रात, सुबह-शाम एक घड़ी जैसे घूमता रहता है। इन लोग भी सारे वर्कर्स दिन-रात, सुबह-शाम हम लोग की सेवा करने में लगे रहते हैं। तो इस कारण आपको लेखिका आज बोल रही है कि हम सबको क्या करना है, मुझे और आपको, आपको किन्हीं 10 लोगों के बारे में सोचना है जो आपके जीवन में आपका बहुत सेवा करते हैं। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि 10 ही हो, अगर आपको उससे ज़्यादा मिले तो और ही अच्छा है, और आपको कृतज्ञ होना है। आप उनके सामने जाके बोलिए, मैं बहुत धन्यवाद हूँ, तुम मेरे लिए ये करती हो, तुम मेरे लिए वो करती हो। और अगर आप बाय चांस उनसे मिले नहीं बट आपको उनकी आज याद आ रही है ये चैप्टर को पढ़ते समय, तो आप उनको फ़ोन करके भी बोल सकते हैं। एंड प्लीज़, अगर आप हो सकते हैं ज़रूर इसको अपनी किताब में लिखने का ट्राई करिएगा, तो आपका फीलिंग्स और बढ़ेगा। जितना फीलिंग बढ़ेगा उतनी आपको कृतज्ञता आपकी और बढ़ेगी। प्लीज़ कंटिन्यू। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है।
यदि आप आज घर पर है, सारिका जी 1 मिनट रुकिएगा ना। तो आप एक चीज सोचिए कि हम लोग इस चैलेंजिंग टाइम में क्या सीखे कि सैनिटाइज करने से कोई भी चीज एकदम प्रोटेक्ट हो जाता है, वायरस हट गए। कोई हम लोग जब घर में सामान आते हैं पहले उसको सैनिटाइज करते हैं। आप एक चीज सोचिए, दिस थैंक यू, दिस मैजिक वर्ड धन्यवाद, वो सैनिटाइजर की तरफ इंसान के ऊपर काम कर रहे हैं। पूरे दिन में अगर आपका जैसा एक व्यक्ति भी, वो इंसान जो दिन रात काम कर रहे हैं, उसको आके सैनिटाइज कर दिया, मतलब मुंह से बोल दिया कि मैं बहुत धन्यवाद हूँ, आप जानते नहीं आप उनके दिन को क्या बना देंगे। यू आर वर्किंग लाइक अ सैनिटाइजर। आप जैसे कोई चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक सामान सैनिटाइजर, वैसे आप उनके दिन को खुश बना रहे हैं। इट इज सो सिंपल, इट विल टेक जस्ट अ सेकेंड टू से थैंक यू विथ ऑल योर फीलिंग्स। सो वी ऑल विल डू इट फ्रॉम टुडे। प्लीज कंटिन्यू। यदि आप आज घर पर है तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन पर घटनाओं को याद कर लिखे जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठे करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी। 10 प्रसंगों की सूची लिखे जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। तो एक चीज आप समझ जाइए कि आज का अभ्यास इज वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल प्रैक्टिसेस। आप जब करने लगेंगे ना, आपको खुद समझ में आएगा। और हम लोग सबको पता है, कर भला तो हो भला। अगर हम लोग किसी के जीवन में मुस्कान ला रहे, उसको कृतज्ञता दे रहे, उसे खुश कर रहे, तो वो रिटर्न में आपके पास जरूर वापस आता ही है। मैं ये नहीं बोल रही आप उस सोच से करिए कि मेरे को भी रिटर्न में कोई अप्रिशिएट करेगा, बट आप उस सोच से करिए कि जब आपको कोई करता है तो आपको कैसा लगता है। हम लोग सब कॉल पे बहुत खुश रहते हैं जब कोई हमें धन्यवाद बोलता है या अप्रिशिएट करते हैं। तो हम लोग किसी को क्यों नहीं कर सकते जो दिन रात हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। तारिका जी, कैन यू प्लीज जस्ट रीड द जादुई अभ्यास क्रमांक 11? अगेन ओके। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोले, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। बस बस, और नहीं करना है। तो आपको कल क्या करना है, अभी लेखिका बोल रही है, सुबह उठने से ही, व्हेन यू आप गद्दा से उठे, जब तक आप रेडी नहीं हो जाए सेशन में आने के लिए, तब तक, जब आप अगर आप नहाते नहीं है पहले, बाद में नहाते, जो भी है, जब तक आप नहा धो नहीं ले, अपने खाना खाने के पहले तक आपको कॉन्स्टेंटली धन्यवाद बोलना है। मतलब गद्दे से उठे तो थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल डे, थैंक यू फॉर द बेड, अपने ब्रश के लिए, टूथपेस्ट के लिए, अपने कोम के लिए, अगर आप नहा लिए, जब आप रेडी हो रहे, जो भी चीज आप यूज करें, आपकी मेड आकर आपको सुबह पानी दे रही है, आपको उसको भी धन्यवाद बोलना है। एंड तक, जब तक आप फुल्ली रेडी नहीं हो जाए सुबह सुबह में। थैंक यू सो मच सारिका जी फॉर रीडिंग द चैप्टर इन हिंदी। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यशस्वी to please take on.
Thank you, Sakshi, for explaining us so beautifully. And thank you, Sarika ji, for reading this beautiful chapter so nicely. Now, I would like someone to nominate themselves to read this beautiful chapter today. I will read it. Please take your name. Vatsal, Yes, please begin, Vatsal. day 10. Magic dust everyone. No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, Theologian. theologian and the Catholic bishop. Yes. So no duty. चाहे आप एक teacher है, you're a businessman, or you are a housemaker. No duty is more urgent than that of returning thanks. Why do you think the author has written returning instead of giving? I mean, these are the magical riddles in these lines. So when do we return? जब हम लोग कुछ इंसान से कोई चीज लेते हैं तो हम लोग उनको रिटर्न तो देंगे ना. सो वी नीड टू रिटर्न थैंक्स फॉर द सर्विस वी हैव अवेल्ड फ्रॉम समवन, फॉर द सर्विस वी हैव गॉट फ्रॉम समवन. एंड मतलब आप ये लाइन को ना बस आत्मसत कर लीजिए अपने दिल में कि नो ड्यूटी, चाहे आप कुछ भी करें आपको उस इंसान को थैंक्स देना ही पड़ेगा. You know, this is like a golden string for all of us to reach to our dreams, to reach that magical world. आपको पता भी नहीं है कि क्या मिरेकल स्टार्ट हो जाएंगे जब आप दूसरे लोग को थैंक यू बोलने लग जाएंगे फॉर व्हाटएवर दे हैव डन. प्लीज कंटिन्यू वत्सल. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. यस. सो आप लोग सबको ही लग रहा 10 दिन हो गया बस ग्रैटिट्यूड 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 कर रहे हैं. So you remember, like in school, we have a final exams and we need to revise all the chapters which we have studied throughout the year. So we need to revise those same chapters, right? Just like that, this is our final exam. हम लोग सबको every day, मतलब the author is just engraving in a subconscious mind gratitude. Gratitude is the way you will reach magical fields in your life. So it's vital to improving your life. मतलब ये हमारे लिए important है. कोई बात नहीं अगर दूसरे जन नहीं करे, बट हमारे को थैंक यू बोलना है बिकॉज हमारे लाइफ में ये मैजिक कॉज होने वाला है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज कंटिन्यू वत्सल. Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you've received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful, positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. यस. तो आप जो भावना के साथ उस इंसान पे ये मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करेंगे वही भावना आपके लाइफ में आएगा बिकॉज वट एवर यू गेट यू रिसीव, राइट? बट इफ यू गिव फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड और जेलसी, सो यू विल रिसीव दैट. सो दिस इज लाइक जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लिटर आप किसी पे छिड़क रहे हैं और उसकी लाइफ पवित्र हो जाएगी. I mean, it's magical, this chapter and this thing what we do. Please continue, Vatsal. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you're not being grateful and you're stopping the good from coming into your life. Yes, so imagine ना कि हमारे पास लेबर ही ना हो
Imagine that we had to do everything on our own. We had to make our own roads. We had to fill water in the tankers. We had to means हम लोग को electricity का भी काम खुद ही करना पड़ता अगर electricity बंद हो जाता. We had to earn our own money. We had to put bricks and cements on our own. Wouldn't we all be insane? Wouldn't we all just go mad? आप ये सोचिए ना अगर एक दिन एक स्टाफ नहीं आता हमारी मम्मी कैसे पागल हो जाती है. So in this pandemic one of my servants had gone for 2 months, and you won't realize I was just doing this chapter at that time and I actually understood the importance of Shambhu भैया. मतलब इससे पहले just taken him for granted. क्या है कुक है बना लेगा ना मतलब खाना तो मिल ही रहा है ना. And that day I thanked him so much कि भैया मैंने आपको कभी thank you बोला ही नहीं है and मैं बस अपने मन से उनको thank you बोल रही थी. I mean it's magical and yet we take these people for granted. Please continue, Vatsan. Next page. Yeah. Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. Yes. So imagine when we all return to our schools or colleges after 1 month of summer holidays, अगर हम लोग को वैसे ही टेबल मिलता है जो हम छोड़ के गए थे, with all the chalk dust, litter all around, and food particles, आपको मन करता है उस environment में जाए? Our minds wouldn't even work because all of us just love clean environment. So say thank you to the peon of the school, to the staff of the school who actually cleaned this so that we could sit in a clean environment. अगर आप पर्सनली नहीं बोल सकते तो आप वो ट्रांसपेरेंट ग्लिटर द मैजिकल डस्ट यू कैन स्प्रिंकल ऑन देम. I mean, imagine how inconvenient our life would be without them. And they're so, so, so important. Please continue, Vatsal. When you're at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. Yes, so I'll give you an example. आप सोचिए जब हम मैकडोनल्ड्स जाते हैं तो आपको वहाँ पे खुद ही काम करना पड़ता है because it's self service, so everything you have to do on your own. But when we go to a 5-star restaurant, which is an elite place, we all are sitting there and the waiters are taking our orders and everything is just on our table. So you see the difference. यहाँ पे आपको जब खुद काम करना पड़ता है थोड़ा सा आप लेजी हो जाते हैं and यहाँ पे आपको सब टेबल पे मिल रहा है. So imagine how lucky we are. I mean, they do so much of work. The waiters सुबह से रात मतलब कोई अगर कस्टमर उनसे रूड भी हो जाता है ना, they have such a big heart. They are so patient. And yet we don't tell them thank you even once for what they do. I mean, it's so important. Please continue, Vatsal. If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks or food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. Yes. I mean, सोचिए आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, means from Delhi to USA. Imagine if there would be no flight, what would have happened? Imagine the services we get on the flight.
आप ये सोचे, you enter an airport, everything you have to do on your own. You need to put your own luggage, you need to take your own boarding card, there is no security guard, there's havoc all around. आपको फ्लाइट में भी अपना सूटकेस डालना है, जब आप फ्लाइट के अंदर भी जाते हैं आपको खुद का ही खाना लेना है. मतलब आप सोचिए आप कितने बेफिक्र होके ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये लोग हैं संभालने के लिए हम लोग को, because they are providing us such good services. इमेजिन आपने अपना सूटकेस तो रख दिया, पर जब आप मुंबई पहुंचते हैं आपको पता चलता है आपने नागपुर के बेल्ट में रख दिया. सो इमेजिन, मतलब हाउ वरीड यू विल गेट, द चैलेंजेस यू विल फेस एट दैट टाइम. बट व्हेन दीस स्टाफ आर देयर, आई मीन एवरीथिंग इज डन सो सिस्टमैटिकली. आप ये सोचिए ना, जब अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पे, वी नीड टू कैरी अ मास्क एंड ग्लव्स, तो देयर आर थिंग्स व्हिच यू नीड टू वरी अबाउट. But when I read this, I literally thanked each person कि वाह भगवान, आपने मेरे ट्रैवल को इतना लग्जरी बना दिया, इतना लग्जरियस बना दिया. I just miss traveling. And मतलब अगर ये मेरे सामने होता ना, I would have told thank you to each one of them, because they always say thank you when we leave the flight. They always say thank you for traveling with us, but we never tell them thank you for the service they provide, for the comfort they gave us in the flight. It's so important. Please continue, Vatsal. Be grateful to those who assist you in your work, whether they are your clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service, as they deserve your continued gratitude in return. Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, as they deserve your kindness and patience. Yes. So imagine how smoothly our life is working because these people are working for us. So please don't think that these people are lesser than you. अगर आप एक बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस करना आपका काम है, उसी तरह ये इनका बिजनेस है. Dignity of labor. Respect the dignity of labor. Next time कभी आप किसी को कुछ बोले ना, तो ये सोचना, भगवान अगर ये नहीं होते मेरे लाइफ में तो क्या मेरा काम होता. You don't even know what they are doing, means treat them as God. हम लोग बोलते हैं ना that all of us want to be treated as such good people, so treat them the way you want to be treated. Respect each one. You don't know what they are going through. Please continue, Vatsal. At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. The marriage might have just ended, or they may be in a desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Philo of Alexandria, philosopher. Yes. So आप सोचिए, कभी कभी हम लोग अपनी मम्मी से तो मेडिटेशन में बात कर लेते हैं, हम लोग को पता भी नहीं कि मम्मी हमारे लिए कितना कुछ कर रही है एंड व्हाट मूड इन शी इज गोइंग थ्रू. पर मम्मा हमेशा हम लोग को समझाती, बेटा बड़ों से अच्छे से बात करो, जो भी आपके लिए कुछ काम करे उससे अच्छे से बात किया करो. So, whenever I read this paragraph, the first example that comes in my mind is the movie Munna Bhai. अगर आप सबको याद होगा, वहां पे एक सीन है where संजय दत्त is in the hospital and he is observing the sweeper जो बहुत hard work कर रहा है and how people are treating him. So, I mean, they're misbehaving with him. अरे भैया ये क्या है, यहाँ साफ नहीं किया, अरे भैया ये क्या है, यहाँ साफ नहीं किया. And
Then Sanjay Dutt walks up to him. And the first thing that comes out from the sweeper's mouth is, भैया आप भी मेरे बारे में complain करने आ रहे हैं. But Sanjay Dutt gave him such a tight hug, मतलब जादू की झप्पी. And he was so happy. He had tears in his eyes कि आज के पहले कोई इसके काम का कदर भी नहीं किया था. And इस इंसान ने इसको आके hug कर दिया. Matlab, he understood his importance that day. So you don't even know what a person is going through. I mean, it's magical what he did. So be kind. It's very important to be kind to people who are working for us. Please continue, Vatsal. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one single simple thing, because they will feel your sincerity. Yes. So, मतलब जब अगर हम restaurant में हैं and we really like the service of the waiter or the chef who cooks such good food, so just don't be on your mobile and be like, thank you waiter, thank you भैया. नहीं, आंख में आंख डाल के बोलो, बोलो कि आप किस reason के लिए उसके लिए thank you. So, last month I'd gone to this restaurant with my friends, and I mean, and he kept asking us, ki, ma'am, do you like our service? Ki food kaisa hai? But sab apne phone pe lage hue the, koi dhyan hi nahi diya. But since I had done this chapter, I knew what's the importance. So I told him, thank you, भैया, इतने सारे लोग हैं, but अब कितने time पे अच्छे से खाना लाए हम लोग के लिए, and the food is just up to the mark. You won't believe when I was leaving. लास्ट में उन्होंने बोला थैंक यू मैम, आपने इतने अच्छे से हम लोग को मतलब फील कराया. आई मीन बिफोर दिस पीपल आर जस्ट लाइक हाँ भैया मतलब काम है आपका, क्या हो गया. आप सोचिए, आपका तो काम है, आप ये बोल देंगे कि मैं तो पैसा दे रहा हूँ भाई, उनका तो काम है. आप ये सोचिए, वन डे दे ऑल स्टॉप कमिंग, ऑल द लेबर पीपल स्टॉप कमिंग. आपका क्या होगा? यू हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, but if they don't come, will you be able to function? Will you be able to work? Think. It's wonderful. Please continue, Vatsal. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you're on your cell phone, because you're not really sincere when you do that. Yes. So I don't remember if you all have watched the movie Avatar. It was in English and it was dubbed in Hindi. So वहाँ पे ना एकदम टॉल बड़े बड़े जैसे ह्यूमंस होते थे ब्लू कलर के, एंड उन लोग मतलब घोड़े पे राइड करके दे वो रीच. So even the horse had a tail and even they had a tail. So when their tails would connect, it is only then that they could fly. So why am I telling you about this connection example? Because हम लोग को भी तो connection होना चाहिए ना. अगर हम लोग ये ग्रैटिट्यूड नहीं फील करे तो दूसरा इंसान कैसे फील करेगा? हम लोग तो बस बोल के फोन में थे थैंक यू भैया, थैंक यू. क्या थैंक यू? क्या चीज के लिए थैंक यू? उसने क्या किया है? So how our skin gets so rough and dried and we need to put cream on our skin? Just like that, you don't know what people are going through. They may be rough from inside, they may be dried from inside. But in order to restore the humanity, to restore these beautiful things, ग्रैटिट्यूड की बरसात कर दो उनके ऊपर. आपको पता भी नहीं है क्या हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में. You will attract more and more things in your life. It's magical. Just try doing this. Please continue, Vatsal. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me.
And I not only thanked her, but I told her all the reasons why I'm grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you've ever seen swept across her face. यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. आप सोचिए अगर ये सिर्फ थैंक यू बोल देती तो मतलब चिकनाई की तरफ फिसल के ये थैंक यू चला जाता. शी वुडंट इवन फील. So I'll give you an example. A few months back, my friend had started this Instagram page where, you know, she would sing and post videos. And मतलब मैं दिल से उसका appreciation करती थी. And I would tell her, wow, Devanshi, you're singing so well. I mean, I would just love her for what she was doing. You won't believe. She sent me such a long paragraph and she was like, Yashasvi, you appreciate me so much. And this appreciation will take me a long way in life. मुझे पता भी नहीं मैं क्या क्या करूंगी क्योंकि तुमने मेरी इतनी बड़ी सपोर्ट बनी. You were always appreciating me, you know, like just people just scroll उसका videos देख लेते थे, but मैं actually देखती थी. You know, I would sprinkle magic dust and know that wow भगवान ये जो भी गाए ये जो भी करे बस इसकी life मतलब हम superstar जैसे हो जाए. So think, because every human craves for appreciation and they need to know the reason why you're appreciating them. Please continue, Vatsal. Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made one second. Not only I Uh, meet another person. the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. The day I walked out of the store indescribably happy. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help Help make. make them feel better and keep them safe. Yes, 1 minute, Vatsal. So you can sprinkle magic dust on known people and unknown people. So I'll give you an example. A few days back, my mother got a blood test done. So the bhaiya who came for the blood testing, my mother told him thank you. I don't know how many times. And जब वो जा रहे थे, मम्मा ने उन्हें एक टिप भी दिया and 2 fruits भी दिया. एंड वो भैया बोले मैडम आपने मुझे बस एक ब्लड टेस्टिंग के लिए इतना थैंक यू बोला एंड इतना दिया. वाई मतलब वो भी सोच रहा था. इवन ही वाज शॉक्ड. बट माय मॉम न्यू कि वो बेचारा इतने दूर से आ रहा है अपना लाइफ रिस्क करके आ रहा है इस टाइम पे एंड ही इज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब. एंड इवन व्हेन माय मॉम व्हेन ही कॉल माय मॉम कि यू नो आपके रिपोर्ट सब नॉर्मल है, मम्मा ने तभी भी उनको थैंक यू बोला. एंड वो बोले कि वाओ मैम आपने तो मेरा दिन ही बना दिया, आपने मुझे इतना थैंक यू बोला है. इससे पहले एवरीबडी टुक मी फॉर ग्रांटेड. एवरीबडी वाज लाइक ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, ये तो ब्लड टेस्टिंग का गाय है, इसमें क्या बड़ी बात है. तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप दूसरे की लाइफ में क्या मैजिक कॉज कर रहे हैं. उनकी तो लाइफ में आप कर रहे हैं but even you are getting it 100 times, you're getting it and you don't even know how. Please continue, Vatsal. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who worked through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I've never really thought about how grateful I am for that service.
which is done like clockwork every day. Thank you. यस सो मतलब अगर वो इंसान आपके सामने नहीं है तो आप अपने मन से आप सोचोगे मैं तो मन से बोल रही हूँ बट क्या उसके पास जा रहा है, क्या उसके पास एक्चुअली ये डस्ट हो रहा है? यस अगर आप अपने फीलिंग से करेंगे तो होगा. एंड एज आई ऑलवेज टेल यू, एहसासों की दुनिया है. फीलिंग्स आर द फ्यूअल. फीलिंग से देंगे, मन से देंगे तो जरूर पहुंचेगा उस इंसान के पास, जरूर पहुंचेगा. So, you can say, I'm really grateful for my security guard who works from day to night to protect us. So, these are just some examples which the author is trying to tell us. Please continue, Vatsal. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkle magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. Yes, so today we need to take 10 people and we need to sprinkle magic dust on all the 10 people who actually provided service to us, who were actually helpful to us. So, आप ये भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम कि अगर आप पेरेंट टीचर मीटिंग ले जा रहे हैं तो आप बोल देना अपनी मम्मी को, मम्मा प्लीज मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दो टीचर पे ताकि वो मेरे बारे में अच्छी अच्छी बात बोले. तो मतलब ये मजेदार गेम है. डोंट थिंक इट एज एन असाइनमेंट. दीज आर सच फन गेम्स व्हिच वी कैन प्ले. I mean, you don't even know what magics you will see in your life. Please continue, Vatsal. If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you've received great service from your mail person, the trash collectors or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. Yes, so आप अपने मन ही मन मत बोलिएगा thank you. Please write it. Write down that what these 10 people did for you. और आप कितने thankful हैं इन 10 लोग के लिए. Please continue, Vatsal. Magic reminder. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Magic practice number 10. Magic dust everyone. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful for. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessing as you can. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly, or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Yes, so today sprinkle the magic dust, the transparent glitter on 10 people whose services you have benefited from. एंड ये तो आज की असाइनमेंट है बट अब से आप जहां पे भी जाए, जहां पे भी है, बस वहीं पे मैजिक डस्ट डाल दे. इफ यू सीइंग समवन इज रैश ड्राइविंग, आप वहां पे भी डाल सकते हैं. आई हैव ट्राइड दैट एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स. मतलब वो ड्राइवर की टेम्परामेंट तभी शांत हो गई मैंने जैसे ही उस पर मैजिक डस्ट किया. सो इट्स वंडरफुल. And today you need to do the magic rock practice and count your blessings as the author reminds us every day. So these two practices will just boost up our gratitude to another level. Now let us read day 11's magic practice. Please continue, Vatsan. Magic practice number 11. A magic morning. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words thank you.
From the moment you open your eyes until you finish getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. Yes. Count your No, sorry. Ethel, that's it. That's it. Yes. So आप जैसे ही उठते हैं, आप जो भी चीज टच करते हैं, चाहे आपका साइड टेबल हो तो उसके लिए थैंक यू बोलिए, बाथरूम तक जाते तो उसके लिए थैंक यू बोलिए, बाथरूम के हैंडल के लिए, बाथरूम के लिए, anything what you touch till you get ready, just keep saying thank you God, thank you. ये टूथपेस्ट है, ये ब्रश है, इलेक्ट्रिसिटी, for the switch, for the charger, everything. So tomorrow is going to be a beautiful, magical morning for all of us. Thank you, thank you, thank you, Vatsal, for reading this chapter so beautifully for all of us. Thank you. Thank you, Kats. And now I would request Aryan Raj to explain this chapter more nicely and give us examples. Hello, good morning, everyone. Thank you, Sakshi and Yasha, for explaining this chapter so beautifully. And thank you, Sarika auntie and Vatsal for reading this chapter calmly and nicely. So today, this chapter is self-explanatory, but हम लोग ये सुने होंगे कि आप 1 रुपया दोगे तो आपको वो 10 रुपया देगा, आप एक थैंक यू बोलोगे आपको 10 लोगों से थैंक यू मिलेगा. लाइक if you want to get appreciated for your skills, you have to appreciate सामने वाला को for your skills. जैसे कि when I was reading this chapter, I was thinking like if I start paying gratitude to my maid, हम पूरा दिन gratitude pay करते रहेगा. Like I get juice, like she gives me juice, she gives me daab ka pani, then she serves me my lunch, she serves me my dinner, she makes my bed, she cleans my room. If I start paying a gratitude, हम उनको अकेला 10 gratitude देगा. 10 workers का तो बाद में I'll think about it. पहले उनको I'll give 10 gratitude. And so बहुत बार होता है कि many of us think कि एक ही जन को कितना बार थैंक यू बोले, लेकिन हम लोग को सोचने को वो एक ही जन हम लोग के लिए कितना बार काम भी तो कर रहे हैं. So you should not think before saying thank you. Like बहुत लोगों जब when we were doing session, I remember एक जन के one of the participants had a question कि I feel ashamed, like I feel shy to say thank you. Like thank you बोलने के लिए क्या शर्म है? Like if you say thank you, that person gets shy. Like वो person के मुंह में हंसी आ जाता है. That person doesn't know how to respond to thank you because वो कुछ आपने unexpected बोल दिया. Like if you don't have a habit of saying thank you to someone and suddenly अगर thank you बोल दिए, it's something unexpected. So next time if you do something, that person will 110% say thank you to you. Like वो person को याद रहेगा कि if you appreciate it, that person will automatically appreciate. वो अभी आपको appreciate नहीं करता होगा क्योंकि उसको लगता होगा कि it will get awkward. Like आप नहीं बोलते हैं तो मैं, जैसे कि earlier I didn't have a habit of saying good morning if someone used to call me. So if you call me before 12 p.m., like before the afternoon time, I start my conversation with good morning. Like it's a must thing. Like I don't know कि जैसे hello होता है, hello good morning, तो वैसे ही start होता है. So whenever someone calls me now, even they tend to say me good morning. Like हम अगर गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, many times it happens कि सामने वाला ही मेरे को गुड मॉर्निंग पहले बोल देता है. So you have to make it a habit. Like आप जैसे कि to all the husbands and wives, अब अपने पार्टनर के साथ खा रहे होगे और अपने पार्टनर को आप इतना साल से अप्रिशिएट नहीं किए और आप एक दिन जाके बैठ के अप्रिशिएट करने लग जाओगे, क्या खाना बनाया है, व्हाट अ टेस्ट. लाइक आज फील हो रहा है कि जन्नत यहीं पे है, मतलब यू आर फीलिंग द हेवन आउट. आप वैसे अप्रिशिएट करोगे उनको तो उनको कैसा लगेगा, मतलब दे विल बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि क्या हो गया. मतलब वो भी सोचेंगे कि एक्चुअली दे हैव कुक्ड लाइक बहुत ज्यादा अच्छा. नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कुक फॉर यू ना, वो लोग एक्चुअली अपना और एफर्ट डालेंगे, जितना एफर्ट ना, क्योंकि दे विल वांट टू हियर दैट सेम अप्रिसिएशन अगेन. एंड इफ यू फेल टू से दैट अप्रिसिएशन अगेन, दे विल गेट डिसअपॉइंटेड. सो प्लीज अप्रिशिएट पीपल. लाइक आप अप्रिशिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आज यशा सेड, हम लोग यशस्वी सेड कि मुन्ना भाई का एग्जांपल में, सो जादू की झप्पी, सो सेइंग थैंक यू इज नॉट इनफ. उसमें क्या बोलता, मुन्ना भाई मूवी में दिखा सकता था कि संजय दत्त जस्ट वेंट टू दैट स्वीपर एंड जस्ट सेड थैंक यू टू हिम, पर नहीं, जादू की झप्पी, बिकॉज ही फेल्ट दैट थैंक यू. तो आपको आंख में आंख, ठीक है, जादू की झप्पी इफ यू डोंट वांट तो आंख में आंख डाल के तो एटलीस्ट यू हैव टू से थैंक यू. क्यों? बिकॉज when you make an eye contact, it means कि आप you're being honest to that person. It's an honest appreciation. आप ईमानदार हो रहे हो. So when we are doing self love also, क्यों आंख में आंख डाल के? Because you're being honest to yourself. अगर आप आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पा रहे हो तो
there is some kind of shyness, वो आप कहीं पे शर्मिंदा हो कोई चीज को लेके, like you're not being completely open about saying thank you. So I think saying thank you should not be a very big task for you. So एक ये हो गया. And yesterday I was talking to a friend, and trust me, I didn't speak to that friend for like more than a year, but we started talking since last week. So yesterday I was talking, and we were talking about different restaurants and all in Calcutta, because we haven't had outside food since long. So we were talking, and then she was telling me a story about her episode. Like there's a place called Episode. So she said that she went with her family friends to Episode. So there was a uncle. He's a very jolly uncle. He always appreciates people. Like अगर कुछ होगा भी नहीं ना, उनका appreciation करने का habit है. So that day वो episode गए थे. So he loved वहाँ का Indian. He just loved it. So वहाँ का manager को he kept calling. मतलब बुला बुला के thank you. उसके पास the manager was sitting in the bar में जा जाके he's continuously saying thank you. So when they called for the check, the manager gave all the adults free shots and gave all the children free mocktails. And it was like, whoa. तो आप जैसे लोग को अप्रिशिएट करते ना, दे एक्चुअली लाइक इट, क्योंकि इट माइट बी यूर द फर्स्ट पर्सन हु हैज अप्रिशिएटेड दैट पर्सन सिंस अ लॉन्ग टाइम. और जैसे कि आपका टीचर्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, लाइक योर टीचर्स माइट, आपको दिखता होगा कि कभी स्कूल में दे बिहेव वेरी स्वीटली एंड सडनली दे स्टे लिटिल इरिटेटेड, लाइक they are not behaving as they are supposed to behave. So we have to understand कि वो even they have like they come and teach us. वो लोग का घर में काम होता है, like they do their whole work. वो आपको जो पढ़ाते हैं वो अपने बच्चे को भी वही पढ़ाती है. They take care of their husband. वो लोग का भी normal life है. तो if we understand कि ठीक है, they didn't get the enough appreciation in their house, so you can be like थोड़ा grateful for them कि they are coming and teaching instead of just constantly irritating them. Yeah, having fun irritating them is all cool. Even I did all that. बहुत ज्यादा ही किया था. So but be grateful, like be grateful to them that they have come, they are teaching. Like try to understand something. जैसे कि last year I did a self development class. It was more like a personality development class. So वहां पे we were taught कि honest appreciation करना चाहिए. कि it was a rule कि we had taken out 15 to 20 minutes in that class कि वहां पे हम लोग को एक दूसरे को बस appreciate करना है कि how is that person looking or how does he talk, ये वो. So when I was this new to class, so I didn't have a habit of appreciation. मतलब appreciation क्या, normally appreciate ही तो करना है, कर देंगे क्या बराबर, पर वो honesty से नहीं होता था. मतलब before appreciating a person वो शर्म ही आता था कि मतलब क्या समझेगा, मतलब क्यों, मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, बट वो शाइनेस एक होता है, लाइक वो शाइनेस होता है. सो व्हेन इन द क्लास एक हैबिट डेवलप हो गया. इट वाज अ 1 month क्लास और 3 hours हम लोग का 15 minutes टास्क ऑनेस्ट अप्रिशिएशन का होता था, बट 3 hours कोई ना कोई किसी को कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करता ही रहता था. मतलब वहां का एनवायरमेंट ही ऐसा हो गया था कि किसी, जैसे इफ वी यूज्ड टू एंटर क्लास लेट, लाइक हम लोग अगर लेट भी कोई एंटर करता था तो सीधा सब लोग बोलते थे कि क्या बोलते, यू आर लुकिंग सो गुड. मतलब कि ही डिडंट अटेंड द अप्रिसिएशन पार्ट, तो सब लोग एक बार में उसको अप्रिशिएट कर देते. इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आउट देयर. सो अप्रिसिएशन इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको फ्री में फूड्स मिल जा रहे हैं उसके वजह से आपको अप्रिशिएट करने लग जा रहे हैं पीपल. सो और सबसे बहुत अच्छा चीज अप्रिसिएशन का, एक स्माइल, द स्माइल दैट यू सी इन द पर्सन's फेस. लाइक I have seen a lot of smiles on my face since I've started appreciating people. मतलब वो जो smile आपका वो face में आता है ना, you'll remember that smile throughout your life. कि आपने किसी का आज दिन बना दिया और वो person पूरा दिन आपके बारे में सोचे. आप किसी को बस एक बार, आप एक lady के पास जाके बोल दीजिए you're looking thin today. पूरा डे she'll go and tell her husband also कि आज मेरे को आर्यन ने बोला कि आज मैं पतली लग रही हूँ. आप कोई जिम में जाके कोई इंसान को, मतलब ओल्ड पर्सन को जाके बोल दीजिए यू आर लुकिंग लिटिल यंग टुडे, वो अपना पूरा घर में जाके अपना पूरा फैमिली के साथ फ्लेक्स करते रहेगा कि आज मेरे को बोला है कि मैं यंग दिखता हूँ, आज मैं यंग दिख रहा हूँ, पूरा टाइम फ्लेक्स करेगा. सो जस्ट डू दिस. आपका कुछ जा रहा है नहीं, सामने वाला का दिन बन जा रहा है, वो जाके इधर उधर फ्लेक्स कर रहा है. एंड व्हेन यू सी इट एक्चुअली फील इट, मतलब उसको लगाना चाहिए कि मतलब हाँ आप अप्रिशिएट कर रहे हो उसको. उसके बाद वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस पार्ट, बट और इसमें जो आज नया एक और चीज हम लोग जो सीखे थे,
दैट इज बिफोर डूइंग अ वर्क मैजिक डस्ट कर दीजिए. मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आप ऐसे भी बोलते तो है कि आपका ये काम से ये एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन है, तो जस्ट बिफोर द वर्क स्टार्ट आप बोल दीजिए कि आपका वो काम से क्या एक्सपेक्ट है. आई एम वेरी ग्रेटफुल, ये काम ऐसे हो गया और ये डस्ट ऐसे स्प्रेड कर दीजिए. मतलब एक जादुई मिट्टी टाइप होती है. मतलब सब लोग के पास कोई, इन हैरी पॉटर आल्सो, जब अगर दे डिडंट यूज वॉन्ड एंड ऑल, तो बहुत सारे स्पेल्स में दे यूज्ड टू थ्रो डस्ट, दे यूज्ड टू थ्रो मिट्टी. तो आप भी वही करना, आपको बस मैजिक डस्ट थ्रो करना है कि ये वाला काम मेरा ऐसे हो जाए. इट्स लाइक आप अपना फ्यूचर खुद लिख रहे हो बेसिकली, वही हो रहा है. एक बार ट्राई कीजिएगा. इफ यू एक्चुअली बिलीव इन व्हाट यू सेइंग, अगर आप बस बोलने के लिए मैजिक डस्ट नहीं करोगे ना, आई एम अश्योरिंग यू 110% इट विल गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान. जैसे कि आपका ये एपिसोड का एग्जांपल, आई डिडंट इवन नो कि आई वुड हैव गिवन इट टुडे, पर यस्टरडे रात को आई स्पोक टू अ पर्सन जिससे हम इतना टाइम से बात नहीं किया. दैट पर्सन गिव मी दैट एग्जांपल. व्हाई? बिकॉज ऑलवेज लाइक पूरा दिन में माथा में चलते कि नेक्स्ट डे हम क्या एग्जांपल दें, हम क्या सोचे. मतलब it's always in my mind ki what if I get blank today, like if I don't have an example, if I didn't have an episode example, I would have missed out a very good example that happened. So when you go to restaurants, यशस्वी explained it so nicely कि हम लोग usually phones में रहते हैं. मतलब लोग every time someone comes and asks how do you like your food and all, हम लोग ऐसे yes yes good 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 good, लेकिन कभी भी उसको eye to eye देख के नहीं बोलते the food was amazing and I loved the service, thank you so. कभी we never do this क्योंकि हम लोग को ऐसा नहीं है कि सिखाया नहीं गया है. It's just that we are not comfortable. So let's try it from today. And if you think कि आप लोग known people के साथ नहीं करते, let's try it from unknown people. Like आप unknown people को रास्ता में जाइएगा, बस थैंक यू बोल दीजिएगा कोई भी चीज के लिए. आप नीचे जाइए, देखिए रास्ता आपका साफ है. You don't have to walk on like dirty roads. So be grateful to those आपका क्या बोलते हैं workers, for the cleaners who are cleaning the road. आपका जैसे कि when my driver takes me to the office every day, मतलब earlier I didn't used to say him good morning or something, obviously habit नहीं था, but he started telling me Jai Ram. So even I have a मतलब I start replying Jai Ram to him because he always tells me. तो अगर someday if he misses out also, so I tell him Jai Ram जी की. मतलब अब automatically हो गया, like it becomes a habit. थोड़ा टाइम सामने वाला को, मतलब this time सामने वाला is you, so you have to put an effort कि the thing that you are expecting सामने वाला आपको वैसे करे. So it is very easy, and practice magic dust every time. Like आप कुछ भी कर रहे हो, if you are attending a class also, thank you, आज मेरा क्लास बहुत अच्छा जाने वाला है, I'm going to learn, I'm learning a lot of things. So be grateful to everything. और anyways आपको काम करने से पहले 10 seconds तो मिलता ही होगा, ऐसा थोड़ी कि सीधा काम करने. So it takes 10 minutes to be grateful about the expectations from the work. और अगर आपका काम ये 10 seconds की वजह से हो रहा है, so why not try it? Let's try it. हम लोग इतना years से अपने हिसाब से कर रहे हैं. So let's try this new things की life actually change हो जाए हम लोग की. So thank you everyone for listening to me so patiently. And so आज का शुक्राना करते, then we take your questions and sharings. Thank you God for thank you God, I woke up early and fresh. Thank you water for keeping me clean and hydrated. Thank you for the fresh air that I breathe. Thank you my parents for loving me, respecting me, supporting me, and fulfilling all my demands. Thank you my friends for checking on me, loving me, always entertaining me. Thank you my workers for always helping me. Thank you God for my family's safety, good health, and prosperity. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Aryan, for explaining us so beautifully Yes, and giving us thank an you. example. So I would like to add one more thing. जैसे Aryan ने बोला that when you appreciate someone, he keeps on flexing, keeps on thinking. तो अगर आप मेरे डैड को अप्रिशिएट कर दो ना, एंड यू टेल हिम यू आर लुकिंग सो यंग, वो पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे एंड पूरा दिन उसके बारे में बात करते रहेंगे. And he really loves appreciation. I mean, genuinely, what Aryan Raj gave us, it was amazing. If you appreciate people, वो हमेशा याद रखेंगे. And आपकी लाइफ में तो होगा ही happiness क्योंकि आपने किसी और को happy किया है. So thank you so Thank much. you very much. Thank you. So अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या शेयरिंग है तो आप पूछ सकते हैं.
So until you all are thinking about the questions, हमको एक और चीज याद आया. So Sakshi, Yashasvi and I had a friend, मतलब even he did magic class with us. So when I asked him कि कैसे चल रहा है उसका count your blessings and all, so he said it's going good. So he asked me कि तुम क्या क्या लिखते हो ये सब ये सब. So I told him, I mentioned everything, like all my workers who did this for me. It's in my count your blessings in my gratitude list. Like I don't have a list अलग से कि workers का ये list इसका ये list. I added in my count your blessings and gratitude का list. So it's like ये तो होना ही है, इसके लिए क्या थैंक यू. हम बोला कि तुम बस सोचो, ऑफिस से जिस दिन गाड़ी चला के घर आना होगा ना, उस दिन तुमको पता चलेगा कि क्या चीज के लिए थैंक यू होना है. ऑफिस जाके तुम चला लेगा, पर ऑफिस से जब आना होता है ना गाड़ी चला के, देन यू स्टार्ट मतलब कि रिग्रेटिंग कि व्हाई डिडंट यू से थैंक यू, आज ड्राइवर जी नहीं है. सो राइट इट डाउन, इट इज इम्पोर्टेंट कि इफ यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, देन जब खुद काम करना पड़ता है ना, तब बहुत ज्यादा समझ में आता है. और जैसे मुझे एक और चीज याद आया, बहुत बार होते हैं हम लोग घर में बैठे हैं आराम से, सपोज एसी चल रहा है, अगर इन रूम एकदम आराम से बैठे, आप कैसे थैंक यू बोल सकते हैं? आप जब आप हैबिट में हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये सब आइडिया आएगा. आप रूम में बैठे, एसी चल रहा है, आपके ना, मेरे साथ होता है, मैं माइंड में सोच रखती हूँ, सोचो उन लोग जो रास्ते पे बाहर धूप में, पुलिस है जो हम लोग का पूरा ट्रैफिक को कंट्रोल करे, सोल्जर्स जो हम लोग के बॉर्डर्स पे, राजस्थान के डिजर्ट्स में एकदम अंडर द सन तप रहे, बट फिर भी वो लोग काम कर रहे. जब आप ऐसे खोजने लगेंगे, अपना माइंड को वर्क कराने लगेंगे ना, ऑटोमेटिकली एवरी दूसरे मिनट आपको बस याद आएगा कि आपको इनको थैंक यू बोलना है, आपको उनको थैंक यू बोलना है. दिस इज हाउ यू प्ले द गेम. Genuinely don't take it as an assignment. ये सिर्फ एक खेल है, एंड यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक. आप ऑटोमेटिकली खेलने लग जाएंगे. जेन्युइन, जैसे शानी जी ने अभी कहा, इट्स एंडलेस. इट इज एक्चुअली एंडलेस. Very true. So I would like to give one more example. As Sakshi said, the soldier example. हम लोग पुलिस लोग को कितना ग्रांटेड ले लेते हैं, उनके बारे में कितना गंदा गंदा चीज बोलते हैं, यार इस पुलिस को तो कुछ आता ही नहीं करना. वो पुलिस नहीं होता ना, तो हम लोग का कोई सेफ्टी ही नहीं होता इस दुनिया में. We take them for so granted. So I'll give you an example. My coach Ashmin ma'am, one day she was just traveling to the car and the police stopped her. मैंने उसकी गाड़ी को स्टॉप कर दिया, and she just stopped there. एंड उसने अपना विंडो नीचे किया, एंड पुलिस वाला वाज लाइक, मैम आप क्या क्या कर रहे हैं? शी टोल्ड हिम, भैया थैंक यू. आप इस धूप में खड़े, इस कड़ी धूप में खड़े, एंड पसीना आते जा रहे, फिर भी सबका ध्यान रख रहे हैं आप. एंड दैट पुलिस मैन वाज शॉक्ड. ही वाज लाइक, क्या बोल रही है ये? मतलब इससे पहले सिर्फ गाली सुनती थी मैं अपने लाइफ में, मैं सिर्फ गाली सुनता था. And he started crying. He had tears of joy. And Ashmi ma'am told us she was so happy when she did that, क्योंकि उस इंसान के लाइफ में इतना हैप्पीनेस आया. So please don't take people for granted, and you don't even know. And she just sprinkled magic dust before leaving. It was just magical. So it's not an assignment, it's a game. Yes. Yeah, good morning. Good morning. Actually, I got the video yesterday, but I was unable to watch that video. So I'll try to watch it today. Then I'll have the question. No. Sure. Thank you. Thank you. 8 right now. We'll wait till 9:13. If you all don't have any questions, we'll end the meeting. जिसको टच कर रहे हो वो सबके लिए आपको थैंक यू बोलते रहना है. So until then, I'll give you all one more example. So whenever I travel, मतलब with my driver, तो बहुत बार होता है कि लोग बहुत रैश निकलते हैं, like they drive very fast. So ड्राइवर जी का यूजुअली टेंडेंसी होता है आज ये मारेगा बोलना, like आज ये मारेगा. So next time if something happens like this, आज ये मारेगा जगह बोल दीजिएगा कि आज इसमें बुद्धि आ जाएगा, आज ये पहुंच जाएगा घर सेफली, instead of saying आज मारेगा को. I did this, Aaron. Oh, you did this? Yes. Oh, sorry. Oh, sorry.
Thank you, all of you. Thank you. Thank Thank so you, much. Auntie. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ही. The way you explain, na, three of you, Yes, all the thank you. different explanation, all the different examples. Thank you, Auntie, for coming on this session, giving us an opportunity, all three of us. So I think so no one has any further questions. So thank you so much for coming here today. See you all tomorrow. Hope you all have a magical day. Thank you. Thank you.